Good morning, students. In this video we will see how to get started with Java NetBeans. Okay, so first, once you download and install this, after that you have to click on this icon and this type of window will get open. After that, first you have to click over file option. Okay, this file you have to click over here, and here you will select new project. So this is the first time we are doing this, therefore we are going to click on new project. Okay, first a project needs to be created. Afterwards, on that single project we will keep on creating new files. For that you just have to once a project is created, after that we will select new files. So first click on new project. After this, from this option, we have categories over here. Click Java. It's already pre-selected, but if it is not, just be sure to do this. Then we have projects. From here you have to click on Java application, then press next button. After this you have to give a name. Okay, it will ask to give a project name to you. Now you can add any relevant project name. So the first one, it's already written Java application 1. If you want to change this, you can give a different name. Okay, let's just I'm leaving it as it is. Now just be sure that whenever you give a name to a project, the same name is shown over here. Create main class with same name. You can see Java application 1 dot Java application 1 is showing. If you want, you can if you want to remove this, you just have to click over here and then you can edit it. Otherwise it will be left like this. Okay, it is showing the project location and folder. It is showing this project location and folder where this file is going to get saved. Okay, so for now let's just have this as Java application 1 only. After doing this, you just have to click on this finish. So it's showing creating new project. It won't take this much time, but okay, so now this is what it's going to look like. Here in this left pane you can see the name of project. Our project name is Java application 1. Then it shows source packages, and again Java application 1, and then Java application 1 dot Java. So this is my name of my program where I am going to write the coding. Now there is another libraries. If it is shown like this, okay, if you won't see all this options, just click on this plus sign and you can see the list. Okay, anything hidden can be like this. Okay, so after this, so what does it actually mean? It means that it's a package, okay, which is called Java application 1 dot Java. Okay, and it has our file, first file. Now let's just come to this right section. You can see different things over here. So let's just go through this one by one. So what does it actually mean? So the first thing we can see here is you can see this slash star and this asterisk sign and with slash. So this is how we use multi-line comment in Java. Now what is the meaning of comment?
Now comment is basically it's something in a program. Let's imagine when I'm writing a program and I'm just developing an application. Now it's going to be a very it's going to consist a lot of codes, okay, and it might be if I'm working on a software, it's not like that once I created the software I will never go through this again, okay, and I will not go through this again on daily basis. So what if I forgot why did I created this page? Okay, if I want to remember some line that okay, I have written this specific code for this purpose, so all those things can be written in this comment section. Okay, so what Java does, okay, the compiler, when it compiles the program, whatever is written in between these will be ignored. ओके, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, वो इसे पढ़ेगा ही नहीं क्योंकि उसके लिए कमेंट है एंड इट विल जस्ट रिमूव दिस. सो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, तो ये सब वो रिमूव कर देगा. इफ यू वांट यू कैन जस्ट लीव इट एज इट इज, और अगर आप चाहते हैं तो ये इसको आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. ठीक है, तो ये होता है मल्टी लाइन कमेंट, इस तरह से हम यूज करते हैं. देयर इज अनदर टाइप ऑफ कमेंट जिसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट. नाउ एग्जांपल ऑफ सिंगल लाइन कमेंट इज दिस. अगर हम डबल स्लैश लगाते हैं और एक ही लाइन में अगर आपको कुछ लिखना है तब आप इस तरह से लिखते हैं. जैसे यहाँ कमेंट में लिखा है ना, टू डू कोड एप्लीकेशन लॉजिक हियर, तो बता रहे हैं कि यहाँ पे सारा आपको जो आपको एप्लीकेशन डेवलप करनी है उसका कोड यहाँ लिखना है. ओके, तो ये आपका कमेंट इस तरह से बता रहा है. यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि अगर आपको इसका हेडर चेंज करना है, ये सब चेंज करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं. सो ये इस तरह से आपका कमेंट सेक्शन यूज होता है. ओके, नेक्स्ट इज, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है पैकेज जावा एप्लीकेशन 1. जो भी आपने हम जब प्रोग्राम बनाया था, यहाँ पे हम जब वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे, हमने इसका जावा एप्लीकेशन 1 नाम दिया है ना, इसलिए यहाँ पे पैकेज का भी नाम आ रहा है जावा एप्लीकेशन 1. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकेज? तो पैकेज हमेशा आपका सबसे टॉप पर स्पेसिफाई होता है, एंड जितने भी हम प्रोग्राम्स बनाएंगे वो सारे एक पैकेज के अंदर बनते हैं. ओके, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है ना जावा एप्लीकेशन 1, तो ये पैकेज का नाम है. ये जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, तो जावा यूज करती है क्लासेस. ओके, जितने भी हम प्रोग्राम्स बनाएंगे वो सारे एक पैकेज के अंदर वर्क करते हैं. तो व्हाट डज इट मीन इज एक्चुअली, अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखा है जो काम कर रहा है. हो सकता है नेक्स्ट पेज पे मैं कुछ कोड लिखूंगी वो कुछ और काम कर रहा है, थर्ड पेज पे मैं कुछ कोड लिख रही हूँ वो कुछ काम कर रहा है, बट हो सकता है फोर्थ पेज पे मैं जो कोड लिख रही हूँ वो थोड़ा सा पार्ट पेज फर्स्ट वाला जो कोड लिखा है उसको भी यूज करना चाह रहा है. फॉर दैट पर्पस, क्योंकि वो एक ही पैकेज में है, तो मैं वो यूज कर सकती हूँ सेम कोड को. ओके, मैं उसको कॉल करके से द प्रोसेस, मैं उस मेथड को कॉल कर सकते हैं, एंड वो कोड में विदाउट writing it again I can just write the name of the package in class कि मुझे ये वाले पैकेज से ये वाली क्लास चाहिए, और वो मैं उसको यूज कर सकती हूँ किसी दूसरे लोकेशन पर भी. ठीक है, और ये कैसे हो रहा है? बिकॉज वो एक ही पैकेज के अंदर है. ओके, सो ये होता है आपका पैकेज. देन हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है पब्लिक क्लास जावा एप्लीकेशन 1. सो जावा एप्लीकेशन 1 इस क्लास का नेम है. ओके, जावा में जितनी भी चीजें हैं आपकी सब क्लास के अंदर होती हैं. इसके आगे एक वर्ड यूज हो रहा है पब्लिक. ये एक्चुअली में आपका एक्सेस मॉडिफायर होते हैं. इसका मतलब होता है पब्लिक, ये आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं. एक होता है पब्लिक, सेकेंड इज प्राइवेट, एक आपका होता है इसमें प्रोटेक्टेड. सो पब्लिक बाय डिफॉल्ट आपका पब्लिक ही होती है क्लास. इसका मतलब है कि इस क्लास को कौन कौन देख सकता है, कौन कौन एक्सेस कर सकता है, क्योंकि एक पैकेज है ना, इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस बना सकते हैं. ये तो फर्स्ट क्लास है, आई कैन क्रिएट अनदर क्लास फ्रॉम हियर. सो व्हाट इफ आई हैव रिटन पब्लिक. सो यहाँ पे अगर पब्लिक लिखा है तो इसका मतलब है अगर मैं वो फोर्थ पेज पर इस पैकेज की कोई क्लास एक्सेस करना चाह रही हूँ तो मैं तभी कर सकती हूँ जब उसके आगे पब्लिक लिखा है. इसका मतलब है ये ओपन टू ऑल है, कोई भी इस क्लास को एक्सेस कर सकता है. इफ दे वांट वो इसमें कुछ चेंज भी परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये होता है पब्लिक का मीनिंग. देन एक होता है हमारा इज प्राइवेट. तो यहाँ पे इसी तरह से प्राइवेट क्लास लिख के आई कैन क्रिएट, अगर हम कोई दूसरी
क्लास क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हेन आई क्रिएट अनदर क्लास लाइक दिस, okay, so what happened in this case is that if I've written private, so private का मीनिंग होता है कि ये आपका मॉडिफायर इसमें किसी और, अगर सपोज यहाँ पे वही 4th पेज, अगर हम कोई उस प्रोग्राम को यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहे हैं तो मैं इस क्लास को एक्सेस नहीं कर सकती यहाँ पर, क्योंकि इसके आगे लिखा है प्राइवेट, और प्राइवेट का मीनिंग होता है कि ये आगे एक्सेस कोई नहीं कर सकता, ना इसको कोई देख सकता है, ना इसको एक्सेस कर सकता है, ना इसको वो कोई चेंज परफॉर्म कर सकते हैं। देन हमारे पास थर्ड होता है मॉडिफायर, दैट इज प्रोटेक्टेड। द प्रोटेक्टेड का मीनिंग होता है दैट इफ यू वांट यू कैन सी दिस क्लास, यू कैन एक्सेस दिस क्लास, लेकिन आप इस क्लास में कोई चेंज परफॉर्म नहीं कर सकते। यू कैन परफॉर्म द चेंजेस हियर। फर्स्ट प्रोग्राम में हम कोई भी चेंज कर सकते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड में, बट हम किसी दूसरे प्रोग्राम से इसको एक्सेस तो कर सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। हम सिर्फ यूज करेंगे बट वी कैन नॉट परफॉर्म एनी चेंजेस ओवर हियर। तो ये होता है हमारा प्रोटेक्टेड। ओके, सो इस तरह के हमारे 3 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। सो लेट्स जस्ट वर्क विद पब्लिक राइट नाउ। ओके, सो ये हो गया पब्लिक क्लास जावा एप्लीकेशन 1। इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास के अंदर लिखा होता है, इस तरह की लाइन होती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स के लिए ARGS। ये इसी तरह से लिखा होता है, एंड ये जो आपके कर्ली ब्रैकेट्स हैं इनके बीच में ही सारा कोड लिखा होता है। तो ये जो है ना, यहाँ जो टू एप्लीकेशन वाला लिखा है, सारा कोड हमें बस यही लिखना है। ओके, हमेशा कोड ये जो एरिया है इसके बीच में होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS के बीच में। ना यू कैन सी एवरीवेयर इस तरह के आपके कर्ली ब्रैकेट्स यूज हो रहे हैं। सो व्हाट डज इट मीन? सो व्हाट दिस कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब है, ये बताता है कि यहाँ से ये सेक्शन स्टार्ट हो रहा है एंड कहाँ तक एंड होगा। अगेन द थिंग इज, जो आपका ब्रैकेट सबसे पहले स्टार्ट हुआ है वो ही आपका सबसे लास्ट में एंड होगा। व्हाई डज इट मीन? बिकॉज हम क्लास के अंदर सारा पार्ट लिख रहे हैं, राइट। सो ये है इसका, ये स्टार्टिंग है और यहाँ पे ये एंड हो रहा है। इट इज शोइंग लाइक दिस। अगर मैं इसको हटा दूंगी ना, सो देखो यहाँ पे ये एरर दिखाने लग गया है ना। तो इस तरह से आपका एरर मैसेज भी शो होने लग गया। सो यू हैव टू क्लोज इट लाइक दिस। जितने स्टार्ट होते हैं उतने ही एंड ब्रैकेट्स भी होने चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो आपका इस तरह से ये वाले कर्ली ब्रैकेट का स्टार्टिंग और ये है इसका एंडिंग। तो कोड हम यहाँ बीच में लिखेंगे। अगर मैंने कुछ और लिखा है, अगर मैं वहाँ पे एक और स्टार्ट करती हूँ, देन आई हैव टू एंड इट ऑल्सो। तो इस एक के अकॉर्डिंग में, सपोज मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट लिखा है एंड आई हैव इस तरह से कर दिया। वेल इसमें ऑटोमेटिक ये करेक्ट कर लेता है, बट इट जस्ट लाइक दिस। नाउ व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे ये स्टार्ट किया था until and unless यहाँ पे एक और स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टार्टिंग है, ये सेकंड स्टार्ट हुआ है, ये थर्ड स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे जब मुझे एंड मिला होगा तो ये फर्स्ट एंड नहीं है, ये किसका एंडिंग है? ये थर्ड वाले का एंडिंग है। सो इस तरह से आपका क्लोज होता है। जो सबसे लास्ट में ओपन हुआ है ब्रैकेट वही सबसे पहले एंड होगा। फिर हमें वापस से स्टार्टिंग मिल गया 4th, तो ये एंड वाला 4th का होगा। फिर हमारा ये सेकेंड वाले का एंड है और फिर ये फर्स्ट वाले का एंड है। इस तरह से आपकी ब्रैकेट्स की ये जो एरिया है इसका रेंज स्पेसिफाई होती है। नाउ पैकेज के का जब हम एंड करते हैं वहां पे हमेशा सेमीकोलन आता है। क्लास के नाम के आगे सेमीकोलन कहीं यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे टर्म आती है पब्लिक, तो हमें पता ही है, स्टैटिक वॉइड मेन। रिमेंबर जावा आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। सो जो चीज़ आप स्मॉल में लिखेंगे और जो चीज़ कैपिटल में लिखेंगे वो बहुत ध्यान से लिखनी है, वो उसी के अकॉर्डिंग एक्सेस होती है, ठीक है। यू कैन नॉट चेंज एनी केस। स्ट्रिंग का फर्स्ट एस हमेशा कैपिटल होगा, बाकी यहाँ पे सारी चीज़ स्मॉल में है, स्टैटिक भी स्मॉल में है, सारा स्मॉल में, बस स्ट्रिंग में जो एस होता है वो कैपिटल होता है।
ये आपके यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज हुए हैं, यू कैन नॉट यूज एनी अदर टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। जब आप एक मेथड का नेम देते हैं, ठीक है, वो हमेशा इस तरह से राउंड ब्रैकेट्स में यूज होता है। ओके, उसकी जो रेंज होती है वो हम इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स में देते हैं, एरिया उसका, कि ओके यहाँ से यहाँ तक हमें कोड लिखना है। नाउ ये जो मेन है ये एक्चुअली में एक होता है मेथड। ओके, और जो भी आपको प्रोग्राम लिखना है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, वो इसी मेन के अंदर लिखा जाता है, आप इसके बाहर कहीं नहीं लिखेंगे। ओके, वॉइड का मीनिंग होता है कि इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। हम प्रोग्राम जो लिख रहे हैं ये वापस से कुछ नहीं भेज रहा। वी विल सी फर्दर कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है स्टेटमेंट का। ओके, फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि ये एक मेथड है। ओके, इट्स कॉल्ड अ मेथड। नाउ मेथड क्या होता है? ग्रुप ऑफ सम स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम मेन के अंदर लिखते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। नाउ let's just try to make a simple program to print something. Now to print a statement, okay, or to print an output, we use a command called system dot out. Now that's the thing, आपके जावा में इस तरह से आपके ऑलरेडी ये देने लग जाता है कि ओके, इज दिस वॉट यू आर सर्चिंग फॉर। ठीक है, तो अगर आपका कोई मैच कर रहा है तो आप यहां से भी उसको सर्च करके लिख सकते हैं। ठीक है, so let's just type it over here right now. It's print and in double quotes, suppose मैंने लिखा hello. स्टेटमेंट की एंड हमेशा सेमीकोलन से होगी। रिमेंबर, यहाँ मैंने स्टेटमेंट बोला है, स्टेटमेंट हमेशा सेमीकोलन से एंड होती है। एंड यहाँ पर हम यूज कर रहे थे दिस इज अ क्लास, सो यहाँ पे सेमीकोलन यूज नहीं होता है, सिर्फ स्टेटमेंट में यूज होता है। ओके, स्टेटमेंट का मतलब है जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ओके यहाँ पे ये कुछ परफॉर्म करना चाहिए। ओके, नाउ सो आई हैव रिटर्न सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो। अगर मुझे कोई चीज एज इट इज प्रिंट करनी है, सपोज आई वांटेड टू प्रिंट हेलो एज इट इज, जैसे मैंने लिखा है बस उसी तरह से प्रिंट हो जाए, तो वहां पे हम उस चीज को डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। ओके, वी राइट इट इनसाइड डबल कोट्स। और ये लिखा कैसे जाता है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट। आई हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट, और उसके बाद जो आप लिखोगे डबल कोट्स में वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। रिमेंबर, यहाँ पे सिस्टम का एस आपका कैपिटल है। ओके, लेट्स enter it over here, and एक और मैं स्टेटमेंट प्रिंट करना चाह रही हूँ। let's say system dot out dot print and in bracket I want to print world. Okay, that's a very basic program. Okay, just remember, suppose मैंने ये इतना ही लिखा है। now you can see that it is showing this in the underlined with the red, है ना, ये आपका रेड से इस तरह से अंडरलाइन हो रखा है। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि इस लाइन में एक एरर है। ना व्हेन यू गो थ्रू दिस इट इज शोइंग कि ये एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज आप यहाँ पे देखेंगे, जब तक आप करेक्ट कोड नहीं लिखते, इस तरह से आपका ये रेड मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह से बंद करा रहा है। सो इन सम केसेस इट शोज कि ओके ये एरर हो सकता है। अदरवाइज स्टेटमेंट में इस तरह से वो ऑप्शन तो देता ही है कि क्या वर्क है। इट्स अप टू यू कि आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि ओके दिस कैन बी द एरर। सो यहाँ पे सेमीकोलन से एंड होना चाहिए। नाउ दिस इज व्हाट अ वेरी सिंपल प्रोग्राम इज। ओके, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम कुछ अगर प्रिंट कैसे कराना चाहते हैं तो क्या होगा। ये हमने इस तरह से लिख लिया। नाउ ये जो हमने सिस्टम डॉट आउट प्रिंट यूज किया है, देयर इज वन मोर थिंग इन दिस। नाउ आई वांटेड फॉर यू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट। जनरली हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज ना करके इसके साथ ये यूज करते हैं, प्रिंट ln। ठीक है, नाउ यू कैन सी यहाँ पे ऑलरेडी इस तरह से दे रखा है। नाउ इफ यू वांट आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं अलाइन ऑप्शन को।
Then the difference is यहाँ पे हम print word use कर रहे थे and we have used here print ln. Now ln is basically used अगर मुझे print आपका next line पे चाहिए. Let's just run this and see what happens over here. ठीक है. Now I have written same मैं इसी तरह से let's say if you want आप यहाँ पर copy paste भी use कर सकते हैं. Okay. Okay, I have written like this. Now let's see कि इसमें execute जब हम इसको करेंगे तो क्या होगा. The second thing is ये तो हो गया हमारा एक it's a very simple program जो हमने बना लिया. Now if I have to save this, to save the program, what you have to do, first go to this option file. Okay, again we will go to this file and you can see save option over here, or you can just either press Ctrl S if you like. So हमने ये save को click किया. After this आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया. फर्स्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू कि जावा में दो चीज़ें वर्क करती हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. कंपाइलर का फर्स्ट वर्क क्या होता है कि ये उस कोड को आपका JVM में कन्वर्ट कर देता है. सो जैसे ही हमने प्रोग्राम को सेव किया ये ऑटोमेटिकली कंपाइल हो गया. ओके, आफ्टर दैट अब हमें इसको वापस कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है. वी विल जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट, या हम बोलते हैं रन करना है हमें प्रोग्राम. सो फॉर दैट गो टू दिस ऑप्शन रन. ठीक है, यहाँ ऊपर आप टॉप पे देखेंगे रन लिखा है. रन में आप इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं. रन फाइल है, कंपाइल फाइल है. अगर आपने कंपाइल नहीं किया है तो आप यहाँ पे F9 प्रेस करके कंपाइल कर सकते हैं. फिर आप इसको रन करना चाहें तो रन भी कर सकते हैं. नाउ रिमेंबर वन थिंग, हम यहाँ पर प्रोजेक्ट को रन नहीं करेंगे. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड फाइल. प्रोजेक्ट का मतलब है इस प्रोजेक्ट में जितनी भी एप्लीकेशन, जितने भी प्रोग्राम्स बनेंगे, अभी तो एक ही है तो अभी तो ये कोई फर्क हमें पड़ेगा नहीं. बट व्हेन आई क्रिएटेड मल्टीपल फाइल्स ओवर हियर, तो अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो सारे रो को रन करेगा. बट वी डोंट वांट दैट टू हैपन राइट नाउ. हमें सिर्फ जो हम राइट नाउ हमने जो लिखा है सिर्फ वही रन करना चाह रहे हैं. फॉर दैट हम यहाँ पे रन फाइल पे क्लिक करेंगे. ठीक है, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन रन फाइल एंड यू कैन सी यहाँ पे इस तरह से लिखा आ रहा है नीचे एकदम आपका टास्क रनिंग. राइट, इट वोंट टेक दिस मच टाइम. मेरे सिस्टम में बस टाइम लग रहा है. नाउ यू कैन सी आपके एक आउटपुट विंडो ओपन हो गई है. राइट, एंड यहाँ पे शो हो गया हेलो वर्ल्ड क्लास 12th. ना मैंने इस तरह से लिखा नहीं था जिस तरह से शो हो रहा है. ना व्हाई डज इट हैपन लाइक दिस. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स इज, मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा है तो यहाँ प्रिंट का मतलब होता है कि ये एक ही लाइन में प्रिंट करता जाएगा. ऑल्दो मैंने यहाँ एंटर प्रेस किया था बट यहाँ पे सिंपल प्रिंट का मतलब है कि ये हेलो और ये वर्ल्ड एक साथ प्रिंट हो गया. ln का मतलब होता है जब मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो ln से आपका जो ये कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाता है. देयरफॉर ये इस तरह से आया. इफ आई वांटेड हेलो वर्ल्ड टू बी प्रिंटेड टुगेदर एंड क्लास 12th टू बी प्रिंटेड टुगेदर एंड इन बिटवीन दोनों के गैप होना चाहिए था, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, आई शुड हैव रोट ln ओवर हियर एंड यहाँ पे ln ना लिखकर मुझे इस तरह से लिखना चाहिए था. ओके, एंड देन अगेन आई जस्ट हैव टू सेव दिस. सेव करना ज़रूरी है वापस, एंड वापस से मैं जाके रन करूँगी. और यू कैन जस्ट यूज़ द शॉर्टकट की जो उसकी होती है आपकी Shift F6. ओके, तो इस तरह से आप देखिए ये इस तरह से शो हो गया. सो दिस इज हाउ योर प्रोग्राम इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड. तो ये तो सिंपल आपका प्रिंट और प्रिंट ln में डिफरेंस है. ऑल्दो व्हेन आई वांट टू राइट दिस, तो मुझे इस तरह से 2 लाइन्स में लिखने की जरूरत नहीं है. आई कैन जस्ट सिंपली कन्वर्ट दिस इनटू अ सिंगल लाइन कोड. ठीक है, मैं इसको कैसे लिख सकती थी, क्लास 12th है
फाइन, मैं एक ही जगह इसको लिख सकती हूँ. आई कैन राइट एनीथिंग ओवर हियर, जितना भी आपको स्पेस और कोई सिंबल यूज करना है. ओके, यू कैन जस्ट राइट, क्योंकि डबल कोट्स में का मीनिंग क्या है कि जो आप लिखोगे वो एज इट इज ही प्रिंट करने वाला है, इसलिए इस तरह से आपका डायरेक्ट आ जाएगा. ओके, तो ये जो भी लिखा था एज इट इज प्रिंट हो गया. सो ये तो हो गया आपके प्रिंट स्टेटमेंट का यूज. इट्स अ वेरी बेसिक प्रोग्राम.